Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hari Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev पावन हरिनाम संकीर्तन की तो आज मध्याह्न भागवत कक्षा श्रवण को समस्त स्वागत। एक्चुअली आज महाराज क्लास थिला कौन सी कारणवश तो महाराज आसी पारे आपण भावुए महाराज ये केमती बसी पड़े आम निजे निजे बसी ना हमको आदेश दिखाई बसिया तेणु आज आम गीतार गोटे श्लोक आलोचना करवा सप्तम अध्याय 28 नंबर श्लोक संग उच्चारण करूँ जेषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणं ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। जे अनुवाद जो लोक माने पूर्व जन्म रे तथा एही जन्म रे पुण्यकर्म करिछंती एवं जो मानकर पाप संपूर्ण रूपे दूर हो जाइछि एवं जो माने द्वंद्व मोहर मुक्त सेई माने ही दृढ़तार सहित मते भजन करती बा पूजा करती।
କହନ୍ତି ଯେସାଂ ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାପମ, ଯାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭଜନ କରିପାରିବ। ତାର ପାପ କେମିତି ଦୂର ହେଇଛି ନା ଜନାନାଂ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମାଣଂ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାର ପାପ କ'ଣ ହେଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ନିର୍ମୁକ୍ତା, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ଦୃଢ଼ତାମ୍ ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍, ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କଲେ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା କେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ସମୁତ୍ଥନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହେନ ଭାରତ ସର୍ବଭୂତାନି ସମହଂ ସ୍ୱର୍ଗଯାନ୍ତି ପରନ୍ତପ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରନ୍ତପ, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରନ୍ତପ ନେଇକରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରନ୍ତପ, କେଉଁମାନେ ମୋର ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତିନିଟା କାରଣରୁ ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି ନା, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ, ମୋର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା କେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ଅର୍ଜୁନ କରୁଛନ୍ତି ଯେସାଂ ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତଂ ପାପମ୍, ଯାହାର, ଯେସାଂ ଅଛି ଯାହାର, ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତଂ ପାପ, ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଜନାନା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ, ସେ ପାପ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା ଜନାନା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମାଣଂ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭଜନ୍ତେ ମାମ୍ ଦୃଢ଼ବ୍ରତଃ, ଏ ଶ୍ଲୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ସହିତ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ କିପରି ଦୂର ହେଉଛି ଆମେ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠି କୁହାଗଲା ଯେଉଁମାନେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା ନା ପୁଣ୍ୟ କର୍ମାଣ ଜନାନାଂ, ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଛି ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ବୋଇଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିଥାଉ, କାହାକୁ ଦାନ ଦେବା ନାଇଁ କି, ଆଉ ଯିଏ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଜନ ଦେବା, ବସ୍ତ୍ର ଦେବା, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସାମାଜିକ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା, ଯେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନାଇଁ କି, ଏସବୁକୁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହରୁ ଆମେ କ'ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷ ଆମର ପୁରାପୁରି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ହଉନି ନା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିପାରିବେ ନା, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା। ସାଧାରଣ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ? ଭକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅଛି। ଭକ୍ତି ଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ଭଜନ କେମିତି କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ଭକ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟକର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କରି କେବେ ହେଲେ ଆମେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋହ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷର ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ କି ଭଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଲେ ଆମେ ବୁଝିବା। ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ପୁଣ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ? ଯେକୌଣସି
निंदनीय कार्य को पाप कहुए कि भक्ति क्या पाप कहुए भगवान विमुख रहा पाप कहुए भगवान दूरे रहा पाप कहुए आ भगवान सहित जोड़िक रहा भक्ति कहुए सी हूँ पुण्यकर्म बुझीपारे बहुत सुंदर भाव बुझाल कि कष्ट नहीं भगवान सहित जोड़िक रहा सेवा करवा हूँ पुण्यकर्म आ पाप कर्म है भगवान दूरे रहा हूँ पाप कर्म आ बेसी बेसी सिद्धांत बुझे बुझे ना आप तो ये कहगला साधारण पुण्यकर्म करी केवल व्यक्ति भगवान भजन कर से पुण्य कर्म करने द्वारा कौन हम तार लाभ कौन हम ना यही संसार रे विभिन्न प्रकार भौतिक कौन मिल सुख सुविधा मिल बहुत धन मिल जहाँ चाहब से आशा सब मिल से पुण्य कर्म कर किंतु यही जगत ही सी कौन कर जन्म मृत्यु चक्र रे घूरी बोल भगवत धाम को जापर ना साधारणतः लोक मैंने भावते यहाँ पुण्य कर्म कले भगवान भक्ति भगवत धाम पलैबा नहीं कि किंतु शास्त्र सिद्धांत कौन कौन तत्व कौन 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 बुझा पड़े तेणु ये कहुच्छी पुण्य कर्म कले भगवान सहित युक्त होगा आ पाप कर्म कले भगवान सहित विमुख होगा से हूँ पाप और ये कहूँ जिते बड़े व्यक्ति भगवान को दिया हुआ नियम को पालन करे सेटा भक्ति आ सेटा पुण्य सेटा पालन करिया द्वारा कौन हम ना धीरे धीरे द्वंद्व मोह जो अच्छी इच्छा द्वेष जो अच्छी धीरे धीरे कमी जाए फिर मुक्त हो जाए से व्यक्ति भजन कर तेणु भक्ति धाराटा केते आम श्रेष्ठ देखो आज भक्ति धारा को आज पर्यंत आम भक्ता ठीक से बुझी ना साधु आसुदी कथा कहते नाम कीर्तन कर प्रसाद पाचे चलती कि ये सब जिनस भितर पशिनी आम आज से भगवत गीता को आम जदि न बुझा भागवतम बुझीपर ना कहते जिते व्यक्ति भगवान को दिया हुआ नियम को पालन करे आ धीरे धीरे कौन हम द्वंद्व मोह कौन हम ईर्षा द्वेष से मुक्त होपरे भगवान ठारे मनटा मटीटा तार स्थिर हो सीटा कहुए भजन आसी हूँ पुण्यकर्म जनाना पुण्यकर्माण तेणु ये कहगला व्यक्ति कि प्रकार पुण्यकर्म कर भगवान सेवा करी भगवान को समर्पित हो सेवा करने को भजन कहुए आ पुण्यकर्म कहुए आमको ये शरीर कौन मिली आमको मनुष्य जीवन कौन मिली जीवनटा भगवान भजन करने ना इंद्रिय तृप्ति करने मिली विषय भोग करने मिली ना भजन करने मिली किंतु आम ओलटा कर इंद्रिय तृप्ति अधिक अधिक आमर कौन कर जीवन को बाजी लगे से कल्याण हम शास्त्र आमको कहते जो मैंने इंद्रिय तृप्ति भाव जीवन टाक बीतई दिखती से पशु शरीर मिल पशु कौन करे चार्टा जिनस करे कौन कौन आहार निद्रा भय मैथुन पशु भगवान भजन कर ठीक से भाई आम जब चार्टा जिनस कर मनुष्य सभा बंचा ताल आम पशु सहित समान तेणुक आमको मनुष्य होगाक मनुष्य वास्तव मनुष्य जदि कहवाक आम जब इच्छा करें भगवान भजन करवा तेणु ये कहगला इंद्रिय तृप्ति आमको भगवान कौन दे मनुष्य जीवन देना भगवान भजन करने तेणु जो मैंने पुण्य कर्म करुँच कौन करेंगे आज ये मनुष्य शरीर कौन मिली जानिकी भगवान भजन
जदि करिवे ताहले सेमानंकु कुहाଯାଏ पुण्यकर्म बा दृढ़ निश्चय रे रही से भजन करिपारिबे। सेमाने दृढ़तार सहित भजन करिपारिबे, सेमानंकु पुण्यकर्म कुहाଯାଏ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ए श्लोक रे पुण्यकर्मर विषय कहते को माने पुण्यकर्म करते भगवान को प्राप्त करते। श्रीमद भागवत गोटे सुंदर श्लोक गोटे दिखाई बुझापी 11 स्कंद 12 अध्याय 9 नंबर श्लोक कहले भगवान निजे कहते जम न जोगेन सांख्येन तप अध्वरी दान व्रत व्याख्या स्वाध्याय संन्यासी प्लाप्नुयात् यत्नवान अपि। व्यक्ति कौन सी योग द्वारा किंबा सांख्य द्वारा किंबा तप द्वारा किंबा दान किंबा व्रत द्वारा किंबा शास्त्र व्याख्या द्वारा किंबा शास्त्र अध्ययन द्वारा किंबा संन्यास द्वारा भगवान को केबे प्राप्त हो पारिबो ना किंबा भजन करि पारिबो नहीं। शास्त्र केते गूढ़ रहस्य जिनस दिया देखते किंतु व्यक्ति बेले बेले भ्रांत धारणा पड़िकी निजक निजे भावुची मु कपड़ा पिंधिदेली भगवान प्राप्त हो भजन भजन करदेवी। बेले बेले सन्यासी मानकर मध्य बेले बेले अहंकार आसे से मैंने भावुच मु गेरुआ वस्त्र पिंधिदेली भगवान को ठीक से प्राप्त हो ना ये मन कराई कहते न न जोगे न कौन सी जोग साधना द्वारा किंबा सांख्यन किंबा तपस्या द्वारा पुणी दान व्रत द्वारा किंबा शास्त्र व्याख्या द्वारा ये शास्त्र अध्ययन द्वारा किंबा संन्यास ग्रहण करिकी जदि से भगवान भजन करूनी किंबा भगवान कौन कर शरणापन्न ही भगवान सेवा करूनी से व्यक्ति केबे हेले भगवान भजन करि परिबा नहीं किंबा भगवान को प्राप्त हो पारिबो नहीं। भागवत कहते पुणी भगवान उद्धव को कहते बहुत सुंदर श्लोक से न साधयन्ति माम योगम न सांख्य योग धर्म न स्वाध्याय तपस्त्याग जथा भक्ति ममर्जिता। भगवान को यही साधन द्वारा या योग द्वारा केबे हेले प्राप्त करि परिबो नाही बा वशीभूत करि परिबो नाही। एड कहते न साधयन्ति माम योगम कौन सी योग योग बोले अष्टांग योग जो कहे से द्वारा मत भगवान प्राप्त हेबे नाही। न सांख्य योग उद्धव सांख्य योग द्वारा मत हो पार नहीं। न स्वाध्याय स्वाध्याय मान शास्त्र अध्ययन केवल जो शास्त्र अध्ययन करी भगवान प्राप्त हो ना। हाँ तपस्या तपस्या करी मत भगवान प्राप्त हो पार केमती प्राप्त हो पार ना ये कौन जथा भक्ति मम जिता जो भक्ति साधन द्वारा मते प्राप्त हो पार मम भजन करि परिबो अन्य साधन द्वारा केबे हेले व्यक्ति मते प्राप्त हो पार नहीं कि भजन करि परिबो नहीं। सेही भली व्यक्ति पुण्यक्रम कहा जाए। श्रीमद भागवत आ गोटे श्लोक कहूँ जदि अन्य साधन द्वारा आमे भगवान को प्राप्त होगा इच्छा कर गोटे उदाहरण दे कहते स्थूल तुषा अवघानितम। श्लोक सुंदर श्लोक अच्छे श्रेयम श्रुति भक्ति उदपास्यते विभो क्लिश्यन्ति जे केवल केवल बोधय लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषा अवघानितम। जीवर कल्याण करने जीव निजर कल्याण करने
भक्ति को त्याग करी जदि से अन्य किछि पंथा बा साधनर मार्ग अवलंबन करे से सी कौन हुए ना अधिकारु अधिका क्लेश और दुख कष्ट पाई थाए। यही ज्ञान योग अष्टांग योग कर्म योग ये सब द्वारा जदि से प्राप्त होगा इच्छा करे एथिरे अधिकारु अधिका क्लेश पाई थाए। गोटे उदाहरण दे बुझाउछंती स्थूल तुषाव घानितम जेपरी धान जितेबाला अमल करती अमल कर पारे अगाड़ी जा सब दूर कौन हुए उड़ी पलाए किंतु अगाड़ी को जदि जड़े आणिकी जदि धान बाहर कर इच्छा तंडुल बाहर कर इच्छा कर कौन तंडुल मिल कौन मिल समय व्यर्थ। ये कहते स्थूल तुषा अवघानिता जेपरी अगाड़ी कौन से प्रकार तंडुल मिले ना ठीक से भाव में अन्य साधन द्वारा भक्ति आमे भगवान कर भजन करिपरिबा नहीं। से भली व्यक्ति माने अधिकारु अधिका एठी क्लेश दुख भोग करंती। बुझी परछन मु कोन कहउछंती पुण्य कर्म मानकर कथा एठी पड़छि। तेणु सूत गोस्वामी कहउछंती श्रीमद् भागवतम रे आमे जे कौन सी धंदा बा कार्य बा धर्म करंतु ना कहीं से कार्य और धंदा माध्यम रे बा द्वारा दे भगवान को आमे भजन बा भगवान को कथा प्रति रति जागृत न होछि ताले श्रम ही एवं ही केवलम श्रीमद् भागवत कहले। ये कहते धर्म स्वनिष्ठिष्ठ पुंसा विश्वक्षण कथा न उत्पायत जदि रति श्रम एवं ही केवलम जदि सबु कार्य बा धंदा करी भगवान कथा प्रति रति बा आग्रह जदि बढ़ुनी से भली धंदा कर्तव्य कार्य सब बेकार श्रम एवं ही केवलम। तेणु यही सब कार्य द्वारा भगवान आम भजन करिपरिबा नहीं। तेणु बुद्धिमान लोक कौन करिबो शास्त्र रे जहाँ दिखाई सेटा को अनुकरण करी भजन करवा दरकार। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो माने साधारण पुण्य कर्म करती से माने कोबळे भाबरे भजन करि परिबे ताहार एक उपमा दौचंती। साधारण पुण्य कर्म कौन बुझले दान देवा आ कौन करवा वस्त्र दान देवा अन्य मान को भोजन देवा हॉस्पिटल खोलिबा वृक्षरोपण करवा एक साधारण पुण्य कर्म कहा जाए। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते एमानकर मध्य भजन करि परिबे एमाने मध्य भजन करि परिबे केमती ये कहते पुण्य कर्म द्वारा साधारण पुण्य कर्म द्वारा से आंशिक रूपे पाप नष्ट हो पूरा पूरी भाव पाप नष्ट होना साधारण पुण्य कर्म द्वारा आंशिक भाव में पापटा जो नष्ट है तार पर कौन लाभ है ना से माने सत्य गुण को आसबे सत्य गुण को आसला परे से तम गुण कौन हम ह्रास हो तम गुण कौन हम ह्रास हो तम गुण ह्रास हो गला परे से आसक्ति कम से आसक्ति रहिबा ना आसक्ति कम है परे जदि बाय चांस भगवान भक्तंकर संग मिलला से भक्त संगरे रही से जदि भक्ति आचरण करेंगे धीरे धीरे कौन हम ना तांकर पापटा कौन हम नष्ट हो संपूर्ण भाव तापर से भगवान भजन करें। यदि भक्त संगर से दूरे रही एभली भाव में पुण्य कर्म करेंगे ताहले से पाप नष्ट हो ना इच्छा दिवस नष्ट हो ना द्वंद्व मुहर बुडिकी रे से भगवान के भजन करें नहीं। भक्त संग निहाती आवश्यक। तेणु आमे माने बहुत सारे आगर पुण्य कर्म करथिले
किंतु भक्त संग मिलु नथिला। आ जेतेबेले भक्त संग मिलिला आमे साधु संग करी धीरे धीरे कौन कले भगवान भजन कले आ समस्त पाप हला कौन हला धीरे धीरे नष्ट हो गला। तापरे भगवान कर भजन आमे करछंती। आ आमे मान होचंती पुण्य कर्मा। केवल भगवान कर भजन करियो पुण्य कर्म कह जाय। भागवत गीता मध्ये से कहला 18 अध्याय 66 नंबर श्लोक रे कहै छै सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कर शरणापन्न हो गला परे भगवान कौन करती समस्त पाप को नष्ट करती। आउ सर्वधर्म परित्यज कर समस्त प्रकार धर्म को से त्याग कर जो भगवान का भजन करछि भगवान कौन करती तार समस्त पाप को नष्ट कर दउछंती। आ से भली व्यक्तिर पुण्य कर्म हे जीवसी। तेणु साधारण पुण्य कर्म माने जले भगवान कर भक्तंकर संग करती से माने धीरे धीरे भक्त संगे भजन करबा द्वारा से माने पाप को कौन हुए समस्त नष्ट हो जाए। आ पाप करबा को इच्छा हुए ना तापरे भगवान कर भजन से माने करि परिबे। आ से कथा पड़ती कहते पापम अंतगतम जार पाप संपूर्ण भाव नष्ट होइछि कहा रही ना जो माने भगवान कर भक्तों संगरे भजन करती से मानकर पाप समूले कौन अच्छी नष्ट हो जाइछि। से माने कौन से धर्मात्मा हो जाइछंती। पापात्मा रु धर्मात्मा हो जाइछि। धर्मात्मा ही कौन कौन नियम पालन करछंती ना धर्म रे चारिटा स्तंभ रहिछि। कौन कौन ये कह परिए चारिटा स्तंभ कौन ना एटा तो अधर्म चारिटा स्तंभ धर्म चारिटा स्तंभ कौन चारिटा पाद किए कह परिए धर्म जो छिड़ा है चारिटा पाद रे छिड़ा कौन कौन तप मु गोटे कहली आ तीन टा कह हाँ हाँ दान दान नहीं तप शौच दया आउटे कौन सत्य ये चारिटा पाद धर्म। जो मैंने पुण्यकर्म व्यक्ति ये चारिटा पाद उपरे रही से कौन करती धर्म आचरण करती। ए धर्म उपरे से पदाघात करती नहीं से पुण्यकर्मा। जो मैंने तपस्या करती शौच शुचि पवित्रता रहती दया करती सत्यम सत्य पालन करती से धर्मात्मा। आ से संपूर्ण भाव पाप नष्ट हो जाए। अधर्म चारिटा स्तंभ कौन पाद अधर्म चारिटा पाद कौन एटा धर्मर चारिटा पाद अधर्मर माँ मैंने कि एत थर शुणिले मन रही अधर्मर चारिटा स्तंभ हो नशा पान मुझे कहीदेली हाँ 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 मांसाहार जुआ आ गोटे अवैध यौन संबंध बा व्यभिचार द्वितम पानम स्त्रीय सुनाम यह अधर्म चारिटा पाद। किंतु जो मैंने भक्त होती भजन कर पुण्य कर्मा से चारिटा जिन कौन कर त्याग कर आउ चारिटा स्तंभ छिड़ा होकर कौन कर भगवान के भजन कर। जो मैंने चारिटा स्तंभ धर्म स्तंभ को पालन कर भक्त से पुण्यकर्मा से भगवान भजन करती। जो मैंने करती ना चारिटा अधर्म चारिटा स्तंभ रही पाप आचरण करती। तेणु लिंक रही जो मैंने तपस्या करती
ସେମାନେ ନିଶାପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶାପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତପସ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଶୌଚ ପବିତ୍ରତା ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ବ୍ୟଭିଚାର କହିଲେ ପୁରୁଷ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସହିତ ରଖିବା କିମ୍ବା ନାରୀ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଶୌଚ ପବିତ୍ରତା ଅଛି ତାହେଲେ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଦୟା, ଦୟାକୁ ତୁଳନା କରାଗଲା ମାଂସାହାର। ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୋଟେ ଦୟା ଭକ୍ତର। ତାପରେ ସତ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଜୁଆ। ଜୁଆ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ତମର କ'ଣ? ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏ 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କର। ଏଇଟା ହିଁ ପାପରୁ ଦୂରେଇବାର ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ? ତପସ୍ୟା। ଆଉ କିଛି କଳିଯୁଗରେ ଆଉ କିଛି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏ 4ଟା ନିୟମ ପାଳନ କର, ଭଗବାନ ଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଭଜନ କରିପାରିବ। ଭଗବାନ ତୁମେ ହେଉଛ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାମକୁ, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆଉ କଳି ମଧ୍ୟ ଆସିକି ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଧର୍ମ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ବୃଷଭ ମାନେ କ'ଣ? ବଳଦ। ବଳଦ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ମାତା ଗାଭୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାର୍ଗରେ କଳି କ'ଣ କରୁଛି? ତାର ବେଶ ବଦଳିକି ରାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ବୃଷର 3ଟା ପାଦକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରହାର କରିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଶ୍ୱରେ ବସିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ମୋରି ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏଭଳି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ପୀଡ଼ା ଦେବା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଆଉ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କଳିକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତତେ ହତ୍ୟା କରିବି। କଳି ସେଠି ଭୟଭୀତ ହେଇକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜକୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ କଳି ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଉ ବଧ କଲେ ନା। ଇଏ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରାଜା 5ଟା ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବ। କ'ଣ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗାଭୀ, ତାପରେ ଛୋଟ ଶିଶୁ, ଆଉ କାହାକୁ? ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଗାଭୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଛୋଟ ଛୁଆ, 5ଟା ଜିନିଷକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ତ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି କଳି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ରଖିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ କଳି, କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ଆପଣଙ୍କ ତ ରାଜ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ, ମୋତେ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଠୁ ସେ 4ଟା ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। କୋଉଟା? ଦ୍ୱିତମ ସ୍ଥାନ ପାନମ ସ୍ତ୍ରୀୟ ସୁନା। ସେ କହିଲେ ଯୋଉଠି ନିଶାପାନ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଠି ରହିବ। ଯୋଉଟା ମାଂସାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ତୁମେ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି ସେଠି ତୁମର ବାସ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କରି ସେଠି ରହିବ। କଳି ସେଠି ସବୁବେଳେ କଳିକଜିଆ ହେଉନି ଏସବୁ ଜାଗାରେ। ତେଣୁକରି ସେଇଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବେ? ଏ 4ଟା ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କର
चारिटा धर्मर पाद को सुरक्षा देकर कौन करी भजन करी ए भजन करिया द्वारा कौन हम ना ये कहते ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता द्वितीय लाइन रे ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता ए सब धर्म पालन करिया द्वारा पाप नष्ट हो गला आ पुण्य कर्म करने द्वारा द्वितीय कौन हम ना ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता से मनुष्य समस्त प्रकार द्वंद्व मोहर मुक्त हो द्वंद्व मान कौन गोटे द्वंद्व है सांसारिक द्वंद्व आ गोटे पारमार्थिक द्वंद्व अच्छी गोटे सांसारिक द्वंद्व कौन सांसारिक द्वंद्वटा ना सुख दुख मान अपमान जय पराजय शीत उष्ण यह सांसारिक द्वंद्व अच्छा ए द्वंद्वटा पुण्यकर्म हेले कौन हम नष्ट हो पारमार्थिक द्वंद्व कौन आम तो आसते आध्यात्मिक लाइन रे पारमार्थिक द्वंद्व कौन अच्छी कि गोटे पारमार्थिक द्वंद्व गोटे अच्छी बेले बेले आम जो ठीक से भजन न करवा काटू कौन शुणीदेला सी कहे मु कृष्ण भक्ति करी ना नहीं कहीं किसी जिनस अलग शुणुची ना सी से भ्रमित हम ये पारमार्थिक द्वंद्व मु मंदिर को जीवी ना नहीं से मंदिर को जीवी ना ये मंदिर को जीवी एमती से विचार कर ये पारमार्थिक द्वंद्व किंतु ए उभय द्वंद्व मुक्त होकर जो मैंने केवल भगवान को प्राप्त होगा इच्छा करी भजन करती से माने समस्त प्रकार द्वंद्व मोहरु मुक्त हो जाए केवल भगवान को प्राप्त होगा उद्देश्य थी लक्ष्य थी से माने समस्त प्रकार द्वंद्व मोहरु मुक्त हो जाए द्वंद्व मोहर मुक्त होगापाई गीतार मध्य भगवान श्रीकृष्ण उपदेश देते कौन कौन द्वंद्व मोह आम पाखे रोचे गीता पढ़ी पर भगवान ये गीतार कहते 2:45 नंबर श्लोक रे द्वंद्व मोहरु आम केमती मुक्त हवा पढ़ो माइक दो समझ सुनिबे ना अनुवाद पढ़ो देखो त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भाव अर्जुन भगवान कहते अर्जुन को हे अर्जुन 3 गुण ऊर्ध को जाओ ये हूँ द्वंद्व आम 3 गुण भितर अच्छे ना भगवान भजन कहीं से 3 गुण ऊर्ध को जाओ ताल जाए कौन हम निस्त्रैगुण्य भाव अर्जुन 3 गुण ऊर्ध जा निस्त्रैगुण्य हम शुद्ध सत्व गुण को निर्द्वंद्व शुद्ध सत्व गुण को गला पर कौन हम ना निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निजर स्वरूप अवस्थान कर निर्द्वंद्व हम नियोगक्षम आत्मा बा आत्मार स्वरूप अवस्थान कर जिते व्यक्ति समस्त 3 गुण ऊर्ध को जीव आउ निस्त्रैगुण्य हम शुद्ध सत्व गुण से कौन हम ना समस्त प्रकार द्वंद्व से अतिक्रम करी आत्मार स्थिर हम यह द्वंद्व मोहर मुक्त होबार गोटे कौशल देले पुणी कहते 15:5
पुणी गीतार गले 15:5 पढ़ो। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अभयम तत्। अनुवाद पढ़ो। जे मोह मिथ्या सम्मान एवं मिथ्या संबंध जे नित्यता को बुझी पारिछि जे काम पिपासा को त्याग करिछि एवं सुख दुख रूप बंधन मुक्त एवं जे किपरि परम सब भगवान को शरण में आश्रय हुए ते शाश्वत काम का भगवान को परम प्राप्त। एडे कहते जे मोह निर्माण मोहा जे मोहर मुक्त आ मिथ्या सम्मान और मिथ्या संगर मुक्त। ये कहते निर्माण मोहा जित संग दोष ये तीनटार मुक्त जे नित्यता को बुझी पारे कहते आध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा जे नित्यता को बुझी पारे आध्यात्मिक नित्यता सब बेले रही आ मोह मिथ्या सम्मान ये सब कौन है अनित्य ए संग जी मुक्त होती कौन हम ना विनिवृत्त काम काम पिपासु को जे त्याग करी सुख दुख रूपक द्वंद्वर जे मुक्त से जाने किपरि भगवान पुरुष भगवान परम पुरुषंकर भजन करने को शरणापन्न होगा से व्यक्ति ही शाश्वत परम धाम को प्राप्त हो पारती। तेणु यही सब द्वंद्व आमको मुक्त होगा पड़े भजन करीगला भजन कलापर ये सब आपे आपे कौन हम नष्ट हो दूर हो भक्ति रे ही यहाँ संभव अन्य कौन सी साधना द्वारा संभव नहीं ये कहु। पुणी ये भगवान कहते आग को भजन्ते माम दृढ़व्रत भजन्ते माम दृढ़व्रत दृढ़व्रत दी प्रकार कौन कौन ना जो मैंने दृढ़तार सह भक्ति करती से माने लक्ष्य हूँ एक कौन से परिस्थिति रे से माने सेतरु पतन हुए नहीं से आज दृढ़व्रत भगवान को भजन करने बा भगवान निकट को जीवाक अन्य कौन से लक्ष्य न रखी अन्य कौन से उद्देश्य न रखी केवल भगवत प्राप्ति उद्देश्य आम जदि भजन करवा ताकू कहुए दृढ़व्रत अन्य कौन सी लक्ष्य बा साधना जदि उद्देश्य जदि रहा दृढ़व्रत से कहना दृढ़व्रतटा कौ भाव में पारे केवल भगवान ही आमर आवश्यक आउ कि ना आवश्यक एम कहुए दृढ़व्रत। चैतन्य महाप्रभु कहते शिक्षाष्टकम न धनम न जनम न सुंदरी कवित्वम बा जगदीश काम है तापर कौन भक्तिरा केमती हम चैतन्य महाप्रभु कहते ताकू ही दृढ़व्रत कहुए न धनम न जनम न सुंदरम कवित्वम बा जगदीश काम है ये सब किसी आवश्यक नहीं महाप्रभु कहते आम कहते या सब आवश्यक आवश्यक आम एमती भजन करवा से दृढ़व्रत हो पार ना न धनम न जनम न सुंदरम कवित्वम बा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताव भक्ति अहेतुकी अहेतुकी भक्ति जदि इच्छा कर सब दूरे रहा पड़ो से ही दृढ़व्रत कहुए। द्वितीय कहले यही मार्ग जो मैंने भजन करती से केते बाधा विघ्न आसिले से कौन करेंगे ना भगवान को भजन को त्याग न कर
ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଟାକୁ ସହିକି ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ବ୍ରତ। ସେମାନେ ହିଁ ଭଜନ କରିପାରିବେ। ତ ଭକ୍ତମାନେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ବାଧା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭଜନ ଟିକେ ବାଧା ହେଇଯାଏ। ସେମାନେ ଜପ ବେଳେବେଳେ କରିପାରନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଳେବେଳେ ଟଳମଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ମଝିରେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ଏସବୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଆଗକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ସହକାରେ ଭଗବାନ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ କି ଜୟ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭଜନ କରୁଥିବାର ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆମେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ନେବା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ? ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିକରି ଭକ୍ତି କରିବାଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ଏତେ ବଡ଼ ଅସୁର ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସବୁବେଳେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି କରିବ? ଆମ ପାଖରେ ସେଇଟା ହେଉନି, ତଥାପି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆମ ପିତାମାତା ତ ସେଭଳି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନୁହନ୍ତି ନା। ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ନିକଟରେ ଇଏ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମର ସେଣ୍ଟର ମାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଡକା ହେଉଛି, ଆସ ଫୋନ କରି ଆସ ପ୍ରସାଦ ଆଜି କ୍ଲାସ ଶୁଣିବ, ପ୍ରସାଦ ନେବ। ତଥାପି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶରେ ଥାଇକିରି ଆମେ ଭଜନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଆମର କେମିତି ଭଜନ ହେଇଥାଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କେତେ ସଙ୍କଟରେ ଥିଲେ, କେତେ ବିପଦରେ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହରି ନାରାୟଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଛରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଜପ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଷୋଳମାଳା ହେଇପାରୁନି, ତା ପରଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ହେଇପାରିବେ ନା। ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ବ୍ରତ। ଆଉ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭଜନ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ସେମାନେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଉଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କରି ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ବାଧା ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଭଜନ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି? କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ? ଭୀମକୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇକି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯତୁ ଗୃହରେ ନିଆଁ ଲଗି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ବିପଦ? କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି କରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ସ୍ତୁତିଟା କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯିବାକୁ ରଥ ଉପରେ ଚଢୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା, କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜ୍ୟଭାର ଦେଇ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହବୁ ନା। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ବିପଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମନେ ପକେଇ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ବିପଦରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭଗବାନ ସେଠି କହିଲେ କ'ଣ ଦରକାର କୁହ? ନା ଏଇ ସୁଖ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଦିଅ। କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ।
भगवान छानिया कहली कौन ये दुख मागुचे एत बड़ राज्य अच्छी सुख रहा समस्ते इच्छा कर ओलटा ये सब मागुं। कुंती महाराणी जड़े नारी तांकोटार शिक्षा करवा कौन पाई से दुख मागिले कहीं दुख मागियार कारण होची सुख आसिले भगवान अति सहज भूल जीव। देखो जहाँ पाखे धन संपत्ति अधिका थी सी भगवान निकट आसनी सब तो सुख मिलूँ जहाँ खाइबा पिंधिबा रहिबा मान सम्मान पूजा लाभ सब मिलूँ सी भगवान कहीं पाक आस कुंती महाराणी कह ये सब आसिले तो मुझे भूल जी आपे आपे भौतिक बद्ध जीव मत सी मुझे भूल जीव तेणु आप दुखटा दे सी आप पाक आस सी कह दुख दियो आम समस्त दुख मागी पार भगवान भक्त होती ना समस्ते कहले प्रभु दुख दियो गोटे स्वर कहले कहतु आपण मैंने भक्त होती ना भगवान कहते प्रभु दुख दियो आज ठार हाँ ना प्रभु देदेवे दुख से सह्या पड़े जहाँ मागे बहु पूरण प्रभु पूरण करिए ना किंतु कुंती महाराणी प्रार्थना रू आम शिखा उचित जदि बा भगवान को आम सुख न मागिले मध्य दुखटा देले भगवान भजन आम कर कुंती महाराणी स्तुति शिखा। भगवान कहले भगवान से कहले कुंती महाराणी कहले तुमर ये प्रार्थना आग पीढ़ी जो मैंने आसबे से मैंने शिक्षा करें भक्ति रे केमिति दृढ़तार सहित रहीकि जेते विपत्ति आसिले केमिति दृढ़तार सहित भक्ति करवा से शिक्षा करेंगे। तेणु ये कथा पढ़ा भजन्ते माम दृढ़ व्रत भगवान महान महान भक्त माने अति विपद रे पड़ के भगवान कौन करती भजन करती। ये श्लोक तात्पर्य से आखिला तेणु आमको मनुष्य जीवन कौन मिली भजन करने इंद्रिय तृप्ति मिलना। भागवतम रे गोटे श्लोक सुंदर भाई फैंड बहुत सुंदर श्लोक गोटे अच्छी लब्ध सुदुर्लभम इदम बहुत संभवन्ते मानुष्यम अर्थतम अनित्यम अपि इह धीर लब्ध सुदुर्लभम बहुत जन्म पर कौन मिली आमको मनुष्य जन्मटा मिली केते जन्म पर पद्म पुराण रे गोटे श्लोक दिखाई जलजा नवलक्षाणी स्थावरात विंश लक्षति क्रोमय रुद्र संख्यक पक्षिणाम 10 लक्षाणी 30 लक्षाणी प्रसव चतुर्लक्षाणी मानवा। आमे मनुष्य हेबा पूर्व 9 लक्ष प्रकार जल जीव जन्म होते मन अच्छी कार मन नहीं भगवान सब डिलीट कर भगवान सब किसी काट दे मन पकेबे ना मन पकेले से चिंता करी से भितर जीव एमती थी बोली पूर्व जन्म रे कौन थी जदि भगवान मन पकईदेवे से चिंता करनी तुम पाखे जदि आउ किए बही तुम पूर्व जन्म सी थी कथा चिंता करनी प्रति पुणी आसक्ति हम ये आम निज लोकटा भगवान भूल जाए प्रति आदि आसक्ति हम से काटिदेले। तेणु 9 लक्ष प्रकार जीव जन आम घूरी जिते आम पुण्य कर्म करवा जल जीवन मध्य रही पुण्य कर्म होदी माछ होकरी पुरीर नरेंद्र पोखरी जिते जन्म मिल से कौन खाइब अवड़ा खाइब से पुण्य मिलला ता परवर्ती जन्म हम
स्थावरात 20 लक्षति 20 लक्ष प्रकार स्थावर जनि अर्थात वृक्ष जनि प्राप्त वृक्ष जनि मते पुण्य अछि हमर एठी वृक्ष अछि ना नहीं बाहर वृक्ष अपेक्षा एठर वृक्ष बहुत पुण्यवान केमती पुण्यवान ना जहाँ भी फल फूल आसुची भगवान रे भोग लागुची ना नहीं से माने पुण्य पाइले सेमानकर परवर्ती जन्म हबो कृमय रुद्र संख्यक 11 लक्ष प्रकार कृमि कीटर जन्म हेबे आ कृमि कीट जन्म है सब जगह कृमि कीट जन्म है कि जेते बेले पुरी रो जो चरणामृत कुंड अछि सेठी जेते बेले जन्म हेबे चरणामृत पाए जगन्नाथकर सेठी पुण्य मिलला ता परवर्ती जन्म होची पक्षिणाम 10 लक्षाणी 10 लक्ष प्रकार पक्षी जन्म हे क्षेत्र पुण्य करेंगे कोठी ना बड़ दौरे जिते पारा हो जाए जगन्नाथ तू सब दर्शन कर अबड़ा खाइबे से परवर्ती जन्म हम पशु नाम 30 लक्षाणी पशव 30 लक्ष प्रकार पशु जन्म मिल पशु जन्म मध्य गाभी सिंह मांकड़ ए तीनटा श्रेष्ठ ए तीनटा पशु ठारे तीन गुण मनुष्य आसुଛନ୍ତି गाभी जन्म जदि पाइबे से सत्व गुण सिंह जन्म जदि पाइबे से रजगुण आ मांकड़ जन्म जदि पाइबे से तम गुण ए तीनटा पशु जन्म जन्म हेबे सेमानकर मृत्यु पर गाभीर मृत्यु पर से कौन हम मनुष्य जन्म पाइब गुण हिसाब से एभली भाव मनुष्य जन्मटा चतुर्लक्षाणी मानवा जी जो गुण अच्छी भगवान कोड़ी कोड़ी फोपाड़े जी जो गुण अच्छी से सभ्यता को से फोपाड़ देवे एभली भाव मनुष्य जन्मटा को मिली आ जिते बड़े सी भगवान कर भजन करे से धीरे धीरे 3 गुण ऊर्ध्व आसे 3 गुण ऊर्ध्व के शुद्ध सत्व स्तर को जाकि भगवान कर भक्त होगा चेष्टा कर प्रयास करे तेणुक कहला मनुष्य जन्मटा आमको इंद्रिय तृप्ति करने को मिले कौन करिया मिलछि भजन करिया भगवान कर सेवा करिया मिली आता भजनटा केबे ठार करिया मनुष्य जन्म मिली गला भजनटा केबे ठार करिया हां हां एटे कहउछंती प्रहलाद महाराज कहउछंती कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवत नेह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदापि कौन अर्थतम जदि बा ए मनुष्य जन्म नष्ट हो कि नहीं किंतु ये हूँ मूल्यवान ए मनुष्य शरीर हूँ मूल्यवान कहीं मूल्यवान कौन पे मूल्यवान है ना मनुष्य शरीर ही आम भगवान भजन कर मूल्यवान अन्य पशु शरीर आम भजन कर यदि प्रहलाद महाराज करते या अनित्य हेले ये मूल्यवान कहीं मूल्यवान ना भागवत धर्मटा ए मनुष्य शरीर ही आम आचरण कर दुर्लभ बोली कहला आजिकल क्या कह भगवान भजन करना से कहते भगवान का डोरी लगिले कर जदि कह पुरी जा चल कहते भगवान डोरी लगे पतित पावन डोरी आस लंबा कौन डोरीटा लंबा ही आसिले धरिकी जी भगवान डोरीटा कौ भाव में लगाते सीटा शिखा पड़े भगवान तो निजे डोरी धरिक आसबे ना आस बोली केमती आसबे भगवान तंकर भक्तों जरिया तुमको डाकिबे से अपेक्षा ना जगन्नाथ स्वयं आसबे बाना नहीं डोरीटा धरिक आस
ଯେମିତି ବିଲବନ ଠାକୁର ବାଡ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ ପଛପଟେ, ସେମିତି କ'ଣ ହବ? କଳି ଯୁଗରେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏରା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଠକ, ଏମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଆତ୍ମାର ହନନ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଘାତୀ ବୋଲି ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପତନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ କ'ଣ କରୁଛି? ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା କୋଉଥିପାଇଁ ମିଳିଛି ଆଉ କେବେଠାରୁ ତମେ ଭଜନ କରିବ? ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ସରିଲେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ କରିବା, ଏବେଠାରୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ନାଇଁ, ଘର ଜଞ୍ଜାଳ ଲାଗିଛି ନା, ସମୟ ହଉନି। ସତେକି ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଅଛି, ବଞ୍ଚିବେ 80 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ। ଭାବନ୍ତି ଆମେ 80 ବର୍ଷ ତ ବଞ୍ଚିବୁ, 50-60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଭଜନ କରିବା। ଜୀବନଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଭାଗବତ କୁହନ୍ତି ଯତେତ ନ ପତେତ ଅନୁମୃତ୍ୟୁ ଯାବତ୍। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ବୃଦ୍ଧ ହବ ବୋଲି କ'ଣ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? କାଲି କ'ଣ ହବ କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛି ଯତେତ ନ ପତେତ ଅନୁମୃତ୍ୟୁ ଯାବତ୍। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବ? ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତୁମର ହିଁ କ୍ଷତି। କାରଣ ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୋଟକା, ଯୋଉ କହୁଛି ଗାଁ ଗହଳିରେ କ'ଣ ଜୀବନଟା ପାଣି ଫୋଟକା। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ? ଭଜନ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ସବୁ ଓଲଟା। କାହା ଘରେ ଯଦି କିଛି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ଆସିବେ ଡାକି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜଣେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆସ ଭଜନ କରିବା। ସିଏ ଆଉ ଶୁଣିବ? ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଜନ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଡାକେ, ଆସ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଶବକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, କହି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାକିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଶବକୁ ନେଇକି ଗଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ସେଇ ମାୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମୋ ଘର ସଂସାର ସତ୍ୟ ଥାଉ, ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ନା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବୁଝା ହବ? ଯଦି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ହରିନାମ ସତ୍ୟ, ବାକି ସବୁ କ'ଣ? ଅସ୍ଥାୟୀ, ମିଥ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ କରୁଛ କ'ଣ? ସତ୍ୟକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଅସତ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲେ? ଆଦର କଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ହବ? ମଙ୍ଗଳ ହବ, କଲ୍ୟାଣ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟ ବସ୍ତୁଟା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି କରିବେ, ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟମ୍ ଶ୍ରୁତି ଭକ୍ତିମ୍ ଉଦପଶ୍ୟତେ ବିଭୋ କ୍ଲିଶନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବୋଧୟ ଲବ୍ଧୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ବସ୍ତୁଟା କରିଦେବା ଦରକାର। ଶ୍ରେୟ କହିଲେ କଲ୍ୟାଣ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ। ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନଟାର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ମଙ୍ଗଳ କେମିତି ହବ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିକି କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା, ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଆଜିଠାରୁ ସବୁ କିଛି ଧନ୍ଦାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ କମଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତ୍ୟକ୍ତା ସ୍ୱଧର୍ମଂ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ହରେଃ ଭଜନ ଅପକ୍ୱ ଅତ ପତେତ୍ ତତୋ ଯତି ଯତ୍ର କୋ ବା ଅଭଦ୍ରମ୍ ଅଦ୍ଭୁତମ୍ ମନୁଷ୍ୟଂ କିମ୍
को वा अर्थ आप्त स भज अभजताम। जदि व्यक्ति तार समस्त धंदा कार्य आ कर्तव्य को त्याग करी भगवान कर भजन करछि आ से भजनटा से संपूर्ण करि पारलानी मनकर भक्ति कला सब किछ त्याग करके आ भक्ति रे से संपूर्ण करि पारलानी अधारु से छाड़ी देला तार अभद्रम तार किसी अमंगल हब ना मंगल हम छाड़िले मत केमते मंगल हम ना जो ठार से छाड़ी थिला भक्ति से ठार पुणे अधरे भगवान ताको कृपा करके कौन करी आगो को बढ़ेबे जहाँ करिछि केबे नष्ट हबन अभद्रम लगे लगे जत्र का अभद्रम अभद्रम रो अर्थ अमंगल केबे हबना तार मंगल ही हम आ जो व्यक्ति भगवान कर भजन को छाड़ी दीछि संसार धर्म सब कार्य कर्तव्य सब करुछि निष्ठापर भाव में 100% तार कौन लाभ ये कहते को बात अभजत अभजतम जो माने सांसारिक धर्म खाली करछन्ति किन भगवान भजन करना से कौन लाभ से नरक को जीवे किंतु जे भजन करछि छाड़ी देछि तार अमंगल किछ होबन तार मंगल होबा भगवान कृपा करी ताको से ठारू बढ़िया पे आगु को रास्ता देबे तेणु मनुष्य जन्मटा कोथि मिलछि हमको भजन करिया पे एवढी भाव वृथा इंद्रिय तृप्ति रे बीतेबा पे हमको मनुष्य जन्म मिलेनि ऋषभदेव तांकर पुत्र मानु कहउछन 100 पुत्र मानु नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम ऋषभदेव तांकर पुत्र मानु कहउछन हे पुत्र माने नृदेह आद्यम सुलभ ए मनुष्य देहटा बहुत सुलभ कहीं सुलभ प्रहलाद महाराज दुर्लभ बोली कहले ना प्रहलाद महाराज कौन लगेले दुर्लभ ये सुलभ लगे कौन पाई सुलभ ना यही मनुष्य शरीर दिव्य तपस्या करी भगवान का दिव्य सुख तुम्हें प्राप्त हो पार किंतु से कहते घुषुरी तो को मध्य मिलुछि ना कौन हाँ सुख मिलुछि ना सी भी सुख प्राप्त होछि ना कौन खाई विष्टा खाई नाल नर्दम शोईकी सी भौतिक सुख प्राप्त होछि तुम्हें मध्य जदि से बड़ी घुषुरी बड़ी जदि इंद्र तृप्ति लागिबो तुमने मनुष्य शरीर बेकार है जीवनटा बेकार है तेणु से भौतिक सुख ठार दिव्य सुख आरु तुम्हें प्राप्त हो केमती ना तप दिव्य दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध्यत ब्रह्म सुखम तु अनंतम या ठार ब्रह्म सुख अनंत परिमाण कौन मिलिब ब्रह्म सुख मिलिब आध्यात्मिक सुखटा ये सब जो सुख मिलुछि आमे जो भाबुछन भौतिक सुख तुरंत बहुत नगण्य घृणा घृणा कर तेणु ए शरीर रे हमको कौन करिया पड़े भगवान कर भजन करिया पड़े भजन करी करी जेतेबेले हृदयटा शुद्ध होई जिवो तापर से सुखटा कौन दिव्य सुखटा आस्वादन करि पारे प्रथम हबन हमको प्रयास करिया पड़े भक्ति रे लागी रहिया पड़े जेते बाधा विघ्न आसिले मध्य भक्ति के हमें त्याग करिबा आसे येडा ला भक्ति रसटा शेष रे मिलिबो एबेठार भजन करी कर जे थिबो एतले वृद्ध होई जिवो केही तुमको पचारिबे ना घृणा करिबे भगवान से रसटा छाड़ी तुम पाको धीरे धीरे के न पचारे मध्य सेटा तुम मन पके कौन कर आनंद पाइब से माताजी हूँ कि प्रभुजी हूँ जे भजन निष्ठापर भाव में दृढ़ता जदि सहित कर अंत समय
तुमको कौन सी प्रकार कष्ट जना पड़ो ना किए किसी कहले मत बाधिब ना कहीं भगवान को निजर कर ना भगवान तुमको भगवान सहित रस आनंद आनंद आदान प्रदान हम तुमको मिली कौन करने भजन करने इंद्रिय तृप्ति मिलनी आमको तेणु आज श्लोक कौन कह ना जेसाम तु अंतर्गत पापम जनना पुण्य कर्माण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। साधारणतः पुण्य कर्म द्वारा आम भगवान भजन कर किंतु से पुण्य कर्म व्यक्ति जदि भगवान भक्तर संग लाभ करे भक्त संगे भजन करे ताहले भगवान भजन सी कर तार द्वंद्व मोह से मुक्त हो पार समस्त पाप दूर हो पार एवं भगवान भजन से कर जे भगवान को बंधु बोली भावे कि भगवान भजन कला से व्यक्ति ही ये जगत शांति पाइब भगवान को भूल के बाकी सब जदि के निजर कला से व्यक्ति अशांत हम आ दुख पाइब तेणु आम भगवान को समस्त भजन करवा जद्वारा ये जगत आम शांति रही पार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। समस्त नाम उच्च स्वर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय जय प्रभुपा 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 जय जय गुरुदेव 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 गुरु पावन हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की शील प्रभुपाद जी महाराज की समवेत भक्त वृंद की